Hello students, welcome back to online sessions of Giri tutorial. In the last session we have started with internal trade. As we all know, the trade within the national boundary, within the national geographical area is known as internal trade. जहाँ पे जो seller है, buyer है, both belong to the same country. अगर intercity भी है, if the trade is taking place between two different cities, two different states, it is also internal trade. Now we have also seen the channel of distribution. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा है. सबसे फर्स्ट चेन इज प्रोड्यूसर who is also a producer who is manufacturer. Next is wholesaler, the person who purchase goods in large quantity from the producer and sell it as per the requirement of the retailer. Third is retailer, the second chain in the chain of distribution, second link in the chain of distribution, who act as link between wholesaler and customer. And the last is customer. So this is the chain of distribution, and today we are going to study the types of internal trade. First one is wholesaler. There are two types of internal trade: wholesale trade and retail trade. In today's session, we are going to discuss about wholesale trade. When goods are purchased in large quantity from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailer, it is known as wholesale trade. The person who is engaged in wholesale trade is known as wholesaler. Wholesaler buy goods from the manufacturer and sell it to retailers. So wholesaler is buyer as well as seller. The wholesaler may perform different function in the process of distribution of goods and services. It enables the producer to reach the consumer. होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है, बल्क क्वांटिटी में परचेज किया जाता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू रिटेलर is known as wholesale trade. The person who is involved in this is known as wholesaler. जो person ये involve होता है, जो person ये एक चीज़ करता है वो wholesaler है. से wholesaler जो है वो directly connected है manufacturer से. Manufacturer does not have any connection with the customer. The only way through which he can know about the customer is the wholesaler. तो wholesaler जो है वो link है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में, एंड उसको होलसेलर बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है फॉर रिटेलर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर. होलसेलर जो है वो गुड्स परचेज करता है प्रोड्यूसर से एंड उससे सेल करता है रिटेलर को. तो यहाँ पे जो होलसेलर है वो बायर भी है एंड सेलर भी है. वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है, बल्क क्वांटिटी में परचेस करता है एंड रिटेलर को वो सेल करता है फॉर रीसेल पर्पस. मतलब द पर्पस बिहाइंड परचेसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी इन बल्क क्वांटिटी इज टू रीसेल इट टू द रिटेलर. द होलसेलर मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट एनेबल द प्रोड्यूसर टू रीच द कस्टमर. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ, कस्टमर्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ होलसेलर ही कैन रीच आउट टू डिफरेंट कस्टमर. नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ wholesaling. According to Philip Kotler, wholesaling include all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use. होलसेलिंग में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एल्विन थॉमस, अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नीदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट एज लिंक बिटवीन द टू. एक ट्रू होलसेलर कौन है? वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना तो वो रिटेलर है, बट act as link between the two. Now let's have a look at the features of wholesaler. First one is a wholesaler purchase goods from the producer in large quantity.
होलसेलर जो है वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से परचेस करता है. नेक्स्ट पॉइंट, होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो होलसेलर है वो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा रिस्क बेरर है. होलसेलर इज द मेन रिस्क बेरर इन द चेन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वो मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में वो परचेस करके अपने पास गुड्स को क्या करता है, स्टोर करके रखता है एंड उसको सप्लाई करता है रिटेलर को एज पर द डिमांड. तो गुड्स जो है वो मीन टाइम पे सबसे ज्यादा वो होलसेलर के पास होता है. एंड इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी लॉस कॉज ड्यू टू चेंज इन फैशन, चेंज इन ट्रेंड, तो वो लॉस सबसे ज्यादा किसको होगा, होलसेलर को होगा. तो दिस इज द रीजन होलसेलर इज ऑल्सो नोन एज द मेजर रिस्क बेरर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट, अ होलसेलर डील विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स. जो होलसेलर है वो मल्टीपल गुड्स में डील नहीं करता. वो इधर वो किसी एक गुड्स में डील करता है या तो कुछ गुड्स में डील करता है, बट वो बहुत ज्यादा वैरायटी में डील नहीं करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. अभी जो होलसेलर जो है उसको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वो लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में डील करता है. वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में. तो जो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रिटेलर. नाउ नेक्स्ट इज अ होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ होलसेलर. ये होलसेलर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एज वेल एज फीचर्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. ही मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर. अभी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कब होती है, जब व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. जितना मार्केट में डिमांड है, अगर उतना सप्लाई नहीं होगा तो प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा. तो यहाँ पे जो होलसेलर है ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई. अभी होलसेलर जो है वो अपने पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वो स्टॉक करके रखता है. तो whenever there is a demand he supply goods from his stock. जब भी डिमांड होता है वो गुड्स क्या करता है, अपने पास से सप्लाई करता है. तो इसके वजह से मार्केट में शॉर्टेज नहीं होता है एंड प्राइस जो है वो स्टेबल होता है. अभी जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होगा, प्राइस बढ़ सकता है अगर डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होगा. बट बिकॉज ऑफ होलसेलर मार्केट में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, तो प्राइस भी कैसे होता है, स्टेबल रहता है. नाउ नेक्स्ट इज अ होलसेलर नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर. अभी जैसे कि ये चीज पे पहले भी डिस्कशन हुआ है, होलसेलर जो है उसको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है मार्केट से. मतलब होलसेलर जो है वो कनेक्टेड है रिटेलर से, राइट, एंड रिटेलर इज कनेक्टेड टू कस्टमर्स. तो होलसेलर जो है उसको मार्केट का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है जो वो मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है. तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होलसेलर से मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ होलसेलर सेल द गुड्स टू रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट. होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी में परचेस करता है प्रोड्यूसर से एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर वो उसे क्या करता है, सप्लाई करता है. रिटेलर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसे उतना गुड्स सप्लाई करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिटेलर जो है उसको गुड्स को स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता है. तो जो होलसेलर है वो रिटेलर को एज पर हिज रिक्वायरमेंट गुड्स सप्लाई करता है. Now, next point is a wholesaler perform the marketing functions like assembling, warehousing, transportation, grading, packing, advertising and financing. So, जो wholesaler है, अभी nowadays जो wholesaler है वो marketing functions भी perform करते हैं for their regular customer, you can say, and for the one who are very important customers. जो मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए मार्केटिंग फंक्शंस भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल असेंबलिंग, गुड्स को असेंबल करना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को वेयर हाउस करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग,
गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करना, रिटेल शॉप में उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, एंड फाइनेंसिंग, वो जो होलसेलर है उसे क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? होलसेलर क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, तो ये फाइनेंसिंग भी करते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ होलसेलर. So now let's have a quick recapitulation. Wholesaler is a person. A wholesaler is a person who purchase goods in large quantity from the manufacturer or producer for purpose of resale to retailer. A true wholesaler is neither a manufacturer nor a retailer, but act as link between the two. Features of wholesaler. Wholesaler is the one who purchase goods from the producer in the large quantity. Second, he is a major risk bearer. He take risk in the process of distribution. Next, he deals in one or few types of goods. वो वैरायटी में डील नहीं करता है, वो किसी एक या few types of goods में डील करता है. A large amount of capital is required in the business. जो होलसेल बिजनेस में एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है. नेक्स्ट इज अ होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर. तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह पे होता है एंड कस्टमर से वो स्कैटर्ड है. तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है होलसेलर से. तो होलसेलर जो है वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है जो उसके बिजनेस के लिए यूजफुल होता है. नेक्स्ट इज अ होलसेलर सेल द गुड्स टू रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट. होलसेलर जो है वो गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर क्या करता है, उसे सेल करता है. लास्ट वन इज अ होलसेलर परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, grading, packing, advertising, and financing. So these are the features of wholesaler. With this, I would like to